Hi guys, welcome back. So today is day 2 and we are going for a Dubai tour like the city tour, and post that evening may we are going to Burj Khalifa and Dubai Mall, Dubai Aquarium and all of those things. So our drive is here and we'll keep you posted, we'll take you along. So see you, bye. So we then got into a cab and then we were transferred to a bus. Now it's called as Dera. It is the first part. It is also one of the oldest part of the city. So the first stop was the spice souk. यहाँ पे हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खरीदे, केसर खरीदा और साथ ही साथ उनकी अमेजिंग हैंडमेड चॉकलेट्स खरीदी। इनकी जो डेट्स चॉकलेट हैं, दे टेस्ट हेवनली। सो उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट फिलिंग होती है और उसके ऊपर चॉकलेट। एंड ट्रस्ट मी, आई एम इन लव। We also saw a lot of decorative pieces. कुछ Turkish item भी थे यहाँ पे, pots, plates, teacups and so much more. And this is Palm Dera. So once it's completed, this is going to be the world's biggest man-made palm-shaped island. So this is Union House, where they decided to unite all the Emirates and form UAE. And that's Jumeirah Mosque. And this is Four Seasons Resort. I mean, look at how beautiful it is. So we just went to the museum. It's called Miraj Islamic Museum and it is located in the Palm Jumeirah area. And it was amazing. हमने gold से बने हुए carpets देखे and I just fell in love. It was so beautiful but so damn expensive. And that's Jumeirah Hotel, post which we stopped at another gem of Dubai, that's Burj Al Arab. It feels surreal to see all of these things in real. इन सबको हम books में देखते थे और live देखना, it's such an amazing experience to be honest. Palm Jumeirah Island, ladies and gentlemen. This is the man-made island here in Dubai. It's a reclaimed area. Before this, cinema, waitress, one of the departmental stores. So then we reached Palm Jumeirah and the next stop was The Point. So from this particular location, you can see the most iconic Atlantis, the Palm. So in order to go that side, I mean towards the Palm Atlantis, we took a monorail, जो कि मैं आपको next vlog में दिखाऊंगी. So keep watching. So the Point in Palm Jumeirah is Dubai's new iconic waterfront destination, and it is a hub for best dining restaurants, cafes and shopping outlets. So we are ready. We went for this half a day city tour and we came back. We had lunch. Like I said कि मुंबई का खाना बहुत अच्छा लगा था तो we ordered once again from there. And अभी हम जा रहे हैं the most iconic Burj Khalifa. So of course if you're in Dubai and अगर आप वहाँ नहीं गए क्या फायदा दुबई है? So we are going to Burj Khalifa. We have already booked the tickets for 124th and 125th floor. And let's see. I hope it's amazing. So I wore this beautiful black dress, and if you need more information, you can follow me on Instagram. So we reached Dubai Mall around 4:30 p.m. और बस दुबई मॉल एंटर करते ही पीछे बुर्ज खलीफा दिखता है और एकदम दिल को सुकून आ गया बुर्ज खलीफा देख के. And that's Nishant. He is busy clicking pictures, and I'm forcing him to be a part of my video. So then we went to -1 floor on like as in Dubai Mall, and we took these tickets like the hard copies, soft copy दिखाने के बाद.
तो बुर्ज खलीफा में एंट्री करते ही हमें बुर्ज खलीफा की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। मतलब कौन से ईयर में फाउंडेशन हुआ, कौन से ईयर में कौन सा फ्लोर बना, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी अवेलेबल है। और उसके बाद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट था, हम लिफ्ट में गए, जो कि वर्ल्ड की चौथी सबसे तेज लिफ्ट है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती है। कैन यू इमेजिन दैट एक्सपीरियंस? तो बाकी सब तो बहुत अच्छा था, मगर बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। हमने इवनिंग का सनसेट का प्राइम टाइम का स्लॉट बुक किया था, जिसके लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे भी पे किए थे। बट लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी, इतना ज़्यादा भीड़ थी कि हम इवनिंग में सनसेट के बाद वहाँ पहुँचे। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये सनसेट के बाद का था। सो यू गाइज इस प्लान वाइजली एंड रीच देयर ऑन टाइम। बट जो भी हो, वी वॉन्टेड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द मोमेंट, एंड जो भी है इट इज़ absolutely pretty and absolutely worth paying for. So इसीलिए हमने सोचा कि चलिए अब हम जब ऊपर आ ही गए हैं तो इवनिंग में फाउंटेन शो बुर्ज खलीफा से देख के जाते हैं, and that's how it looks like. तो ये फाउंटेन शो जो है वो फ्री है और आप ये दुबई मॉल से देख सकते हैं। प्लस सबसे अच्छी बात ये है कि ये फाउंटेन शो और बुर्ज खलीफा पे लाइट शो हर 30 मिनट्स में होता है, 2-2.5 मिनट के लिए। तो इसे देखना आप बिल्कुल भी मत भूलें। और ये जो हमने बुर्ज खलीफा से देखा ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं स्पेस में नहीं हूँ, ये बुर्ज खलीफा की लिफ्ट है। आई मीन लुक एट दैट, हाउ क्रिएटिव दीज गाइज आर। तो बुर्ज खलीफा से बाहर आने के बाद हम दुबई एक्वेरियम गए, जो कि दुबई मॉल में ही सिचुएटेड है। तो उसकी टिकट्स भी हमारे पास ऑलरेडी बुक्ड थी, हमने बस हमारा ऑनलाइन टिकट वहाँ पे काउंटर पे दिखाया और हार्ड कॉपीज कलेक्ट कर ली। यहाँ पे हमने इतनी सारी फिशेस देखी जिनके मैं आपको नाम भी नहीं बता सकती हूँ। शार्क्स, जेलीफिश, मंटारे एंड व्हाट नॉट। तो सबसे पहले तो हम इस टनल में गए जिसके साइड में पूरा एक्वेरियम है। तो आप बहुत सारी फिशेस ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से फिशेस ही देख सकते हो, एंड इट इज़ सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव। सो आई वुड सजेस्ट डू नॉट मिस दिस। Please go ahead, buy a ticket and visit this tunnel of the Dubai Aquarium. And बस ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है दुबई एक्वेरियम, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको सेकेंड फ्लोर पे जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज, यू गेट टू सी जेली फिशेज, यू गेट टू सी क्रोकोडाइल्स, यू गेट टू सी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। चलिए आगे आगे वीडियो में दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं एक अच्छे यूट्यूबर की भूमिका निभाते हुए फिशेस को भी फोर्स कर रही हूँ अपने वीडियो में आने के लिए। एंड इसके बाद हमने ना फिशेस के साथ एक फॉल्स स्नेक देखा। एक्चुअली वो फॉल्स स्नेक मतलब फेक स्नेक नहीं है, वो उसका नाम ही फॉल्स स्नेक है और मुझे लगा कि वो सच में फेक है। एंड हमने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखा और वो भी मुझे लगा शायद फेक हो सकता है, बट नहीं, वो रियल था। देन वी सॉ जेली फिशेज, एंड 2 टाइप की हमने जेली फिशेज देखी। उसके बाद हमने बहुत सारी स्टार फिशेज भी देखी। इसके बाद we ended our day with a wonderful fountain show in front of Burj Khalifa along with the light show.